Dear students, today I'm going to explain you scene 3, Soam's rooms. In the last previous two videos, I already explained scene number 1 and scene number 2. In scene number 1, Hilton Soames goes to the Sherlock Holmes house and tell what is happened in the college. In second scene, Sherlock Holmes and Watson come to the Mr. Soames' rooms and they investigate what is actually happened and they find some clues there. They make their own story that person is come in this room and then he start to writing the paper. First paper he leaves on the floor and second paper he leaves on the writing table, a small writing table next to the window. He writing very quickly, so his pencil will break down. That's why he has to sharpen it again, and that's why there are some pieces of the pencil on the small writing table. Then he found some black mud on the big writing table and a door in the Mr. Soames' rooms. That door opened in his bedroom, and he found some black mud also behind the curtain there. After getting these clues, Mr. Sherlock Holmes make their own story that the man come in his room. He start to writing the paper and he left the first paper on the floor. He writing the second paper. He write very quickly. Then he hear that Mr. Soames come in the room. He has to hide. He must be hide. So he go in the Soames bedroom and hide behind the curtain. Now we will start scene number 3, Soames' rooms. Next morning, after getting these clues and after making their own story, Sherlock Holmes and Watson go to their room. Next morning, a very worried Soames brings Holmes and Watson into the room. अगली सुबह से जो बहुत ज़्यादा परेशान मिस्टर सोम्स थे बिकॉज टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन एंड एग्जाम पेपर वर कॉपीड बाय वन स्टूडेंट एंड ही डिडेंट नो हु इज़ दैट स्टूडेंट. उनको नहीं पता था कि वो स्टूडेंट कौन है. तो वो होम्स को और वॉटसन को लेकर अपने रूम पर आए. Holmes has already interrogated the 3 students. Interrogate means to ask some questions to get any information from any one person. तो होम्स ने ऑलरेडी वो 3 स्टूडेंट जो अपस्टेयर्स पर रहते थे, ऊपर रहते थे, उनसे इंटरोगेट कर लिया था. होम्स ने कहा मिस्टर सोम्स से, प्लीज कॉल बैनिस्टर. देन सोम्स लीव द रूम एंड रिटर्न विद द बैनिस्टर. होम्स. Now there is a conversation between Holmes and Bannister. Holmes, Bannister, I must tell you that Mr. Soames called you into the room yesterday. Bannister, Mr. Soames ने कल आपको अपने रूम में बुलाया था. You saw something on that chair and you sat on it before the Mr. Soames could see it. If you remember in scene number 1, Bannister fell ill. Bannister बहुत ज़्यादा बीमार फील करने लगे थे और वो एकदम से चेयर पर बैठ गए थे. तो मिस्टर होम्स ने यही कहा कि आप जब चेयर पे बैठे थे तो आपने चेयर पे कुछ देखा और उसको छुपाने के लिए मिस्टर सोम्स से आप चेयर पर बैठ गए. बैनिस्टर ने कहा नो सर, ऐसा नहीं है. होम्स ने कहा यस, एंड व्हेन मिस्टर सोम्स वेंट आउट टू फाइंड मी यू ओपन द डोर एंड सेड यू कैन कम आउट नाउ टू द मैन हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन. नाउ मिस्टर होम्स, शर्लॉक होम्स सेज टू द बैनिस्टर. बैनिस्टर से कहा उन्होंने कि यस ऐसा ही था, आपने चेयर पे कुछ देखा और आप उस पर बैठ गए ताकि मिस्टर सोम्स उसको ना देख पाए. और जब मिस्टर सोम्स मुझे बुलाने के लिए आए, यू ओपन द डोर, आपने डोर को ओपन किया और वो मैन जो कर्टन के पीछे छुपा था, आपने उससे कहा कि अब तुम बाहर आ सकते हो. बैनिस्टर लुकिंग अफ्रेड, बैनिस्टर डर गया. देयर वॉज नो मैन सर, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था. सोम्स ने रिप्लाई किया बैनिस्टर प्लीज गो एंड स्टैंड नेक्स्ट टू द बेडरूम डोर. देन सोम्स ने कहा कि अब तुम जाके वहाँ पर खड़े हो जाओ. और देन Sherlock Holmes says to the Hilton Soames to take the Gilchrist, and Mr. Soames returned with the Gilchrist. Holmes, when the Gilchrist signed the room, that Bannister was also there and he is standing near the bedroom door. He is getting very worried. वो बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया. सोम्स ने कहा होम्स, Sherlock Holmes, now there is a conversation between Sherlock Holmes and Gilchrist also. Holmes, Mr. Gilchrist, why did you copy the examination paper yesterday? कल आपने एग्जामिनेशन पेपर को कॉपी क्यों किया? Bannister,
नो सर, नो मिस्टर गिलक्रिस्ट सर, आई नेवर सेड एनीथिंग। यानी कि वो डिफेंड कर रहे थे मिस्टर गिलक्रिस्ट को और उन्हें कह रहे थे कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, ताकि वो अपना मतलब गिलक्रिस्ट जो है वो अपने आप से सामने से ना बोल दे, इसलिए उन्होंने पहले ही उनको एक इशारा दे दिया कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। सोम्स ने कहा नाउ बट यू आर हेल्पिंग अस बैनिस्टर, कि तुमने कुछ नहीं कहा पर अब तुम हमारी हेल्प कर रही हो। तभी अचानक से गिलक्रिस्ट बिगिंस टू क्राई, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। एंड होम्स गो टू द गिलक्रिस्ट एंड शो सम सिंपैथी टू हर, टू हिज। होम्स, why did you you did something very wrong, Gilchrist, and but you are very sorry now. I can see that. I am going to tell you the story, Soms. Mr. Gilchrist first saw the papers through the window. अब जब गिलक्रिस्ट रोने लगे तो मिस्टर सोम्स ने कहा कि आपको पता है गिलक्रिस्ट कि आपने कुछ गलत किया है, पर आप सॉरी फील कर रहे हो और आप रो रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ। अब मिस्टर शर्लॉक होम्स एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे। सारे क्लूज को देखने के बाद, सबसे बात करने के बाद, अब वो अपने फाइनल डिस्कशन पर आए, फाइनल डिसीजन पर आए उन्होंने कि एक्चुअली में क्या हुआ था। तो वही वो अब सोम्स को बताएंगे कि क्या हुआ था, और जो सोम्स के डाउट्स हैं वो उनसे पूछेंगे। नाउ शर्लॉक होम्स ने सोम्स से कहा कि आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी। अब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। मिस्टर गिलक्रिस्ट फर्स्ट सॉ द पेपर थ्रू द विंडो। सबसे पहले गिलक्रिस्ट ने उन पेपर्स को विंडो से देखा। सोम्स ने कहा बट कोई भी विंडो से अंदर नहीं आ सकता है, नोबडी कैन गेट इन थ्रू द विंडो। होम्स ने कहा यस दैट्स ट्रू, ये सही है, बट अ वेरी टॉल मैन लाइक द गिलक्रिस्ट, क्योंकि गिलक्रिस्ट बहुत बड़े थे, कैन लुक इट फ्रॉम द गार्डन, वो गार्डन से विंडो के अंदर देख सकते हैं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस कट ऑन द टेबल। पहले तो मुझे वो टेबल पे जो कट थे वो समझ में नहीं आए, बट तभी मुझे याद आया कि गिलक्रिस्ट लाइक्स रनिंग, कि गिलक्रिस्ट को दौड़ना बहुत पसंद है। एंड दिस यंग मैन वेंट रनिंग येस्टरडे आफ्टरनून, और यही यंग मैन कल क्या थे, आफ्टरनून में रनिंग करके वापस आ रहे थे। व्हेन ही वॉकड होम, जब वो घर वापस आए, हिज रनिंग शूज वर इन हिज हैंड, उनके रनिंग शूज उनके हाथ में थे। वॉटसन, रनिंग शूज हैव स्पाइक्स ऑफ कोर्स। तो अब वॉटसन ने क्या कहा कि रनिंग शूज में स्पाइक्स होते हैं और उन्हीं स्पाइक्स की वजह से वो कट आपके टेबल पर आए। तो अब इस सीन में वो पूरी स्टोरी उनको बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मिस्टर गिलक्रिस्ट saw the paper from the window from the garden because he was very tall, so he can see through the window. Then he comes, yes, Gilchrist went past this window and looked in. He saw the exam paper on the writing table. When he passed from your door, he saw that there was the key in it. Then he comes in your room and put his shoes on the big writing table. That's why there is some cut on the writing table. Holmes asked to the Gilchrist, what you put on the chair? तुमने चेयर के ऊपर क्या रखा था जो विंडो के पास थी? तो गिलक्रिस्ट ने रिप्लाई दिया, माई वॉच। देन होम्स ने सोम्स से कहा कि आफ्टर पुटिंग हिज शूज ऑन द राइटिंग टेबल ही पुट्स हिज वॉच ऑन द चेयर एंड ही बिगिंस टू कॉपी वन ऑफ द पेपर। आई एम गोइंग टू सी मिस्टर सोम्स व्हेन ही कम्स बैक अक्रॉस द गार्डन, ही थिंक्स। लेकिन जब उसने देखा कि गार्डन से आपको ऐसे आते हुए देखा होगा, बट यू वॉकड इन द बैक डोर, पर आप तो बैक डोर से आए थे। Gilchrist, when he copies the paper, he hear that you is coming quickly. Then he takes his running shoes and run into your bedroom to hide. When shoes leave some black mud behind the curtain, I found the same on your shoes. Soms, have you nothing to say? यानी कि अब उन्होंने पूरी स्टोरी उनको बता दी मिस्टर सोम्स को कि पहले गिलक्रिस्ट ने विंडो से आपके पेपर्स को देखा, जब वो वहाँ से ऊपर जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि आपके रूम में की लगी है। वो आपके रूम के अंदर आए और उन्होंने अपने शूज़ को राइटिंग टेबल पे रखा, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ कट और ब्लैक मड के पीसेज हो गए, क्योंकि वो दौड़ कर आए थे तो बाहर से ब्लैक मड लगी थी और रनिंग शूज़ में स्पाइक्स होते हैं जिससे कट बन गए। फिर उन्होंने पेपर को उठा के कॉपी करना शुरू किया। पहला पेपर कॉपी किया और उसको कॉपी करने के बाद फ्लोर पर रख दिया। सेकेंड पेपर कॉपी कर रहे थे तो उनकी पेंसिल टूट गई, उन्होंने इसको शार्प किया और इस वजह से वहाँ पे पेंसिल के पीसेस आ गए। फिर जब वो कॉपी कर रहे थे सेकंड पेपर, उन्होंने सुना मिस्टर सोम्स कि आप रूम में आ रहे हैं, तो वो जल्दी से भागकर आपके बेडरूम में छुप गए, जहाँ कर्टन के पीछे भी मुझे वापस से ब्लैक मड मिली, और उन्होंने अपनी जो वॉच थी उसको चेयर पर रखा था, जिसे वो उठाना लेके जाना भूल गए थे। ठीक है, तो गिलक्रिस्ट ने कहा, अब वो सोम्स जो है, अब ये सब उन्होंने पूरी स्टोरी बता दी, उनको पता लग गया कि जो कल्प्रिट है वो कौन थे, गिलक्रिस्ट थे। तो सोम्स गिलक्रिस्ट से कहते हैं, हैव यू नथिंग टू से, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए अब भी कुछ बचा है? तो गिलक्रिस्ट अब वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं, तो वो अपने सोम्स यानी कि अपने जो प्रोफेसर हैं, उनके टीचर हैं हिल्टन सोम्स, उनसे कहते हैं, आई हैव ए लेटर हेयर, मैंने एक लेटर लिखा था अर्ली दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही, आई बिगिन टू राइट यू, मैं आपको बताना चाहता था।
इट सेज, उसमें मैंने ऐसे लिखा था, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन बिकॉज आई एम गोइंग टू साउथ अफ्रीका टू वर्क फॉर द पुलिस देयर. मिस्टर बैनिस्टर टॉक टू मी एंड दिस इज द राइट थिंग टू डू, आई अंडरस्टैंड दैट्स नाउ. मिस्टर बैनिस्टर ने कल मुझे कहा भी था, तो इसीलिए मैंने एक राइटिंग पेपर लिखा कि मैं एग्जामिनेशन पेपर नहीं दूंगा क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ. क्योंकि गिलक्रिस्ट बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे कि उन्होंने पेपर कॉपी तो कर लिए बट वो खुश नहीं थे, इसलिए वो चाहते थे कि एग्जामिनेशन पेपर वो ना दें. तो सोम्स ने कहा कि गिलक्रिस्ट जब बेडरूम में थे बैनिस्टर, एंड यू डिड नॉट टेल द मिस्टर सोम्स, बैनिस्टर आपने वो बात मिस्टर सोम्स को नहीं बताई. और व्हेन यू सा द गिलक्रिस्ट वॉच ऑन द चेयर, यू डोंट टेल टू द मिस्टर सोम्स एंड यू सेट ऑन इट टू हाइड इट. यानी कि अब जो होम्स है बैनिस्टर से कह रहे हैं कि बैनिस्टर जब गिलक्रिस्ट रूम में थे तब भी आपने मिस्टर सोम्स को नहीं बताया, और जब आपने उनकी वॉच देखी तब भी नहीं बताया, और उल्टा आपने क्या किया, आप उसके ऊपर बैठ गए ताकि आप उसको छुपा सकें. तो वो सोम से पूछते हैं, बैनिस्टर से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया. तो बैनिस्टर रिप्लाई करते हैं कि सर, आई वॉज वंस ए सर्वेंट टू द सर जेम्स गिलक्रिस्ट. सर जेम्स गिलक्रिस्ट जो गिलक्रिस्ट के फादर हैं, मैं एक बार उनके यहाँ पे काम करता था और उसके बाद मैं यहाँ कॉलेज में आ गया. तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, इसीलिए सो आई डिड एवरीथिंग टू हेल्प दिस सन हेयर. तो मैं उनके सन की हेल्प करना चाहता था. येस्टरडे आई कॉल्ड मिस्टर गिलक्रिस्ट. जब मैंने गिलक्रिस्ट को यहाँ देखा कि मैंने उनसे पूछा, यू लुक द एग्जाम पेपर, क्या आपने एग्जाम पेपर देखे हैं. तो उन्होंने कहा कि हाँ. मैंने उनसे पूछा, डिड यू कॉपी दैम, क्या तुमने उनको कॉपी किया. ही सेड येस एंड आई डिड. देन आई टोल्ड टू द गिलक्रिस्ट, बैनिस्टर ने कहा कि मैंने फिर गिलक्रिस्ट से कहा कि देन यू कैन नॉट टेक द एग्जामिनेशन पेपर, कि अगर तुमने एग्जाम पेपर कॉपी की है तो तुम एग्जामिनेशन नहीं दे सकते. थिंक अबाउट ऑफ योर फादर, अपने फादर के बारे में सोचो. ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, यू मस्ट बी ऑनेस्ट टू, कि वो एक बहुत अच्छे और बहुत ईमानदार हैं, आपको भी ऑनेस्ट होना चाहिए. अगर उनको पता लगेगा तो उनको कैसा लगेगा. आई वॉन्टेड टू स्टॉप हिम, मैं तो उनको रोकना चाहता था मिस्टर होम्स. तो मिस्टर होम्स ने कहा, येस यू वर राइट बैनिस्टर, कि हाँ आप सही थे, बिल्कुल सही. तो नाउ द चैप्टर सीन नंबर 3 is also completed and the chapter is also completed. So in this way Sherlock Holmes solved this mystery that who copied the exam papers.